Everyone, welcome to the channel. So in today's video we are going to complete the current affairs for the month of April 2025 through these mind maps. Now this mind maps has been divided into many parts, that is the national current affairs, then we have the international current affairs, summits and conferences, economy, and in totality there are 15 heads in which the current affairs is divided. Now this is very beneficial for the revision purposes. Now I have already created a playlist on the channel in which I have completed the current affairs for the month of June and the current affair for the month of May. Now this is going to be the current affair for the month of April 2025. So let us start with our first topic, that is of the national current affairs. Now you all can revise this with greatest efficiency through these mind map series. Now you can get the PDF also. You just need to see the pinned comment section and you will find the way to download the PDF. Now let us start. The first news is about the Udan scheme. Now Udan scheme is related to the Ministry of Civil Aviation, in which airways or airports are going to open and the airplane services will be provided in the tier 2 and tier 3 cities. In total, this Udan scheme was launched in the year 2016. Okay, the important point to know is about कि tier 1 cities Udan scheme के अंदर include नहीं है. These are only the tier 2 and tier 3 cities. Now who is the Minister of Civil Aviation? This you will tell me in the comment section. Next is India's largest cruise terminal. Now India's largest cruise terminal, that is MICT, has recently been inaugurated in Mumbai. Next is the first green municipal bond has been recently issued by the Ghaziabad in UP. Ghaziabad Municipal Commission has issued the first green municipal bond. Now this is very important for the upcoming UP PSC examination. Now recently the initiative which was initiated by India, that is the International Big Cat Alliance, the headquarter of which has been opened in the India. Okay, International Big Cat Alliance has its headquarter in India. Also जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसमें 7 कैट की स्पीसीज़ को इंक्लूड किया गया है. कैट की स्पीसीज़ टू बी क्लियर, टाइगर, लायन, पूमा, चीता etc. 7 cat species are there. Now you have to tell me in the comment section कि कौन कौन सी 7 categories हैं यहाँ पे which is included in the International Big Cat Alliance. Next news is about the first Himalayan Climate Center which has recently been inaugurated in Udhampur, which is in Jammu and Kashmir. Okay. Next is in the month of April some of the states के GI tag मिला है. Now we are going to see we are going to see the states which have got the GI tag. Now Shehnai of Uttar Pradesh has been awarded the GI tag. Now this point you need to remember that Uttar Pradesh has the most number of GI tags in India now. ठीक है. Now who is in the second position? This you will tell me in the comment section. Now talking about Meghalaya, तो मेघालय का खासी हैंडलूम and Rindia हैंडलूम has been granted the GI tag. Talking about Gujarat, तो Amalsar Chico of Gujarat has been designated the GI tag for the state of Gujarat. Next news is about the first quantum key distribution in India has been achieved recently. Now this has been achieved by the C-DOT and the STL Limited, that is Sterile Technologies Limited. These both have achieved India's first quantum key distribution. Next is Athletes Passport Management Unit has recently been inaugurated in the state of New Delhi. Next is the Surface Mount Technology SMT and Mechanical Innovation Park. This has been recently inaugurated in Manesar, Haryana. Okay, this is an important thing you need to know about this. Talking about Kalpakkam, Tamil Nadu. So this is very much in news. Why this is in news? Because India's first prototype fast breeder reactor has been recently is going to be inaugurated in the state of Tamil Nadu. Okay, India's first prototype fast breed reactor in Kalpakkam, Tamil Nadu. Now talking about Mumbai. In Mumbai, India's first thorium based small modular reactor is going to be opened.
Now, India's first national level institute dedicated to animation, visual effects, gaming, cosmic and extended reality sector, that is Indian Institute of Creative Technologies. Indian Institute of Creative Technologies, IICT, is going to be it is also going to be inaugurated in Mumbai. ठीक है, सो मुंबई के रिगार्डिंग दो न्यूज़ हो गई हमारी. थर्ड न्यूज़ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स. दिस इज ऑल्सो इनाग्रेटेड इन मुंबई. ऑल्सो मुंबई में है हमारा बंजारा विरासत म्यूज़ियम. बंजारा विरासत म्यूज़ियम, सो ये भी आपको ध्यान रखना. नेक्स्ट इज अमरावती एयरपोर्ट में साउथ एशिया का लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू बी ओपन. नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द स्टेलर मॉडल. द स्टेलर मॉडल is initiated by the Central Electricity Authority. Now this is a state of the art totally indigenous developed resource adequacy model. Okay, so stellar model is related to electricity. ये आप ध्यान में रखना, this is important. Now Palna scheme is integrated under the Mission Shakti. Now what is the Palna scheme? Now Palna scheme is related to the creche facility that is provided to the women having children. Now this Palna scheme has been integrated under Mission Shakti. Now this Mission Shakti and this Palna schemes come under the Ministry of Women and Child Development. ठीक है. Also, okay, let us now move to our next current affairs, that is about IIM Ahmedabad. Now IIM Ahmedabad has become the first IIM to establish its campus overseas in Dubai. Now let us see some of the news in brief. Now, India Cyber Crime Coordination Center to share data with ED, Enforcement Directorate. This was opened in the year 1956. ED, ठीक है, and who currently is the head of the Enforcement Directorate, ये आप मुझे comment section में बताना. क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि which of the following has recently agreed to share the data with the ED? So that is the Indian Crime Coordination Center. नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ फर्स्ट PM मित्र टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड इन मध्य प्रदेश. नेक्स्ट इज TrueNat HPV HR Plus. व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज द फर्स्ट इंडिजीनियस HPV किट फॉर द सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग. नाउ दिस इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड इन इंडिया. सो ये TrueNat इज इम्पॉर्टेंट, ऐसे आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. TrueNat रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट? सो दिस इज for the cancer screening. Next is AI Careers for Women initiative. This is an initiative of the Ministry of Skill and Microsoft. Now this इसका aim क्या है? The aim is for the pursuing the career in artificial intelligence. Next in the line is the Bharat Project. Bharat Project is an initiative of the Ministry of Commerce and it is for the entrepreneurs. ठीक है, ये ध्यान रखना खाली कि Bharat Project is related to Ministry of Commerce. Now India's first onboard ATM on a train. So this has been inaugurated on Panchavati Express which goes from Mumbai to Manmad. मतलब Panchavati Express में first onboard ATM is there. Next is India's first digital threat report. Now India's first digital threat report है जो हमारी, that is inaugurated by that has been released by the Ministry of Electronics and Information Technology, that is MEI MIT. Now next and the last current affair in the national current affairs section is India has become the member of the Indian Standard for Accounting and Reporting, that is ISAR. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि which country recently has became the member of the International Standard for Accounting and Reporting. So ये है हमारे इंडिया. Let us now see the second topic हमारा जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का. So let us start with the first one. Review Our Ocean initiative is launched by the USA based NGO Dynamic Planet. Dynamic Planet is the name of the NGO जिसका कि इनिशिएटिव का नाम है Revive Our Ocean Initiative. Now UNESCO Memory of World Literature में 2 लिटरेचर्स ऐड हुई हैं. सबसे पहले तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कि ये मेमोरी ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर इज़ रिलीज बाई हूँ, सो इट इज़ रिलीज बाई यूनेस्को. एंड कौन सी 2 लिटरेचर ऐड हुई हैं? द फर्स्ट वन इज़ भागवत गीता एंड द सेकेंड वन इज़ नाट्य शास्त्रा. नाउ हु रोट दिस नाट्य शास्त्रा? दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है,
Let's now proceed to the next question, that is world's first global carbon tax in shipping industry. ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स इन शिपिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन एम्प्लॉयड एंड दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय whom? So it is started by the International Maritime Organization and India is a member of this, ये याद रखना. Next is the President of India visited Portugal and Slovakia. It means our President Srimati Draupadi Murmu has visited Portugal and Slovakia and she has been honored with the highest civilian honor of the Portugal, that is the city of Key of Honor in Lisbon. ठीक है, so this is related to Portugal, ये आप ध्यान रखना, that is why this becomes very much important. Now talking about Mauritius, the first African country to sign an international solar alliance partnership framework, हमारा मॉरिशियस बना है ये. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, ये याद रखना. ठीक है, मॉरिशियस हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन ए ISA partnership framework, that is International Solar Alliance. Talking about the International Solar Alliance, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2017 में. ठीक है, इंडिया ने स्टार्ट किया था इसे विद द हेल्प ऑफ फ्रांस. नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश के रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. सबसे पहला तो बांग्लादेश हैज़ बिकम द 54th कंट्री टू ज्वाइन द आर्टेमिस अकॉर्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज आर्टेमिस अकॉर्ड. नो, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है दैट वाज initiated by NASA and it is also known as the Outer Space Treaty of 1967. This is very much important, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ये आप याद रखना. Next is, let us see some of the international affairs, current affairs in brief. Now the UNDP, that is United Nations Development Program, has joined the Santiago Network. Now this Santiago Network is there to help the developing countries with the climate change. ठीक है, ध्यान रखना सेंटियागो नेटवर्क का क्या पर्पस है. इट इज़ देयर टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज विद द क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट इज अबाउट द E5 एंड E3 शिनकानसेन. ऐसे आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस. सो दिस इज द बुलेट ट्रेन दैट इज टू बी गिफ्टेड बाय जापान टू इंडिया. इंडिया में दिस द बुलेट ट्रेन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड. सो दिस इज गिवन बाय जापान टू इंडिया. ये वाला फैक्ट यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, सो इसको आप ओमिट कर देना काइंडली. दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स. PDF में आई विल करेक्ट दिस. नेक्स्ट इज न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क इज गोइंग टू सेलिब्रेट ऑन April 14th as BR Ambedkar Day. नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट UAE. UAE हैज़ बीन करेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरपोल कमिटी ऑन गवर्नेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है MOU फॉर बायलैटरल ट्रेड इन कॉटन. नेक्स्ट है हंगरी विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको. विच कंट्री रिसेंटली हैज़ विड्रॉड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. सो दिस इज हंगरी. टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है. हेडक्वार्टर इसका हेग में है, दैट इज़ इन नीदरलैंड. ऑल्सो आपको मुझे बताना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है. दिस विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स नाउ सी द करंट अफेयर्स दैट इज रिलेटेड टू समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज. अब जितनी भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट्स हैं, आइए हम डील करते हैं उनको. नाउ द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग, ये कंडक्ट हुई थी ब्राज़ील में. 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चरल मिनिस्टर मीटिंग इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन ब्राज़ील. इसका मतलब ये आप समझ लो, जो ब्रिक्स की समिट है 2025 की, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन ब्राज़ील. सो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड जितनी भी सब कमिटी, सब मिनिस्टर्स की बैठक होगी या कॉन्फ्रेंस होगी, वो ब्राज़ील में ही होगी. ठीक है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है 150th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन. ये कहाँ है. सो इसकी जो समिट है ये ताशकंद में हुई है. नेक्स्ट इज़ अबाउट द नेशनल. एक और है इसमें, दैट इज़ द 6th बिम्स्टेक समिट. बिम्स्टेक समिट बैंकॉक चार्टर 1997 से इस्टेब्लिश हुई थी एंड 6th बिम्स्टेक की समिट है दैट इज़ बीइंग करेंटली हेल्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड. नेक्स्ट इज़ अबाउट नेशनल. सो कोस्टल स्टेट्स फिशरीज मीट, ये रिसेंटली हुई थी मुंबई में. इंडियाज़ ग्लोबल फोरम NXT25, ये हमारा इसकी भी मीटिंग हुई थी मुंबई में. ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड द थीम वॉज संभावना. स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ हुआ था 2025 का. दिस वॉज ऑल्सो कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली.
नेक्स्ट इन लाइन है हमारा इकोनॉमी की करंट अफेयर्स। सबसे पहला तो प्रवाह पोर्टल है, दिस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आपके आने वाला है, सो इसको आप मार्क करके रख लेना। और प्रवाह पोर्टल किसका है? सो दिस इज़ बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ प्रवाह पोर्टल, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारा फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। सो टॉकिंग अबाउट द ईयर 2024, हमारा चाइना सरपास्ड यूएसए टू बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, बट नाउ एज ऑफ अप्रैल, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एज ऑफ जून ऑल्सो, अभी ये वीडियो जून में रिकॉर्ड हो रही है, तो यूएसए इज द टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, सेकेंड इज चाइना एंड थर्ड इज यूएई। यूएई का रैंक याद रखना, यूएई इज़ इंपॉर्टेंट, ऐसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं कि यूएई इज़ द थर्ड हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, सो ये आप ध्यान में रखना। नाउ वन स्टेट वन आरआरबी इनिशिएटिव, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस इज इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। नाउ व्हाट इज दिस वन स्टेट वन आरआरबी? अंडर दिस अमालगमेशन करना है 26 आरआरबीज का। लेट अस सी सम ऑफ द ब्रीफ न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट नाउ आरबीआई ने कैंसिल किया है लाइसेंस ऑफ इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। सो कौन से बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। नाउ इंडियाज़ फर्स्ट बीएसई इकोनॉमी इंडेक्स फंड एडलेविस म्यूचुअल फंड है। नेक्स्ट है हमारा एसबीआई टू डिप्लॉय ग्राहक मित्रस टू प्रमोट अल्टरनेट बैंकिंग। सो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके वनडे एग्जाम में कि ग्राहक मित्रास आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय विच बैंक? सो दिस इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय द एसबीआई। ऑल्सो एसबीआई इज द डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, DSIB। नाउ इसका मतलब क्या होता है? जो भी बैंक जीडीपी का 2% इन टोटलिटी 2% ऑफ द क्राइटेरिया है, अगर वो होल्ड करते हैं, सो दे आर कंसिडर्ड एज द डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ऐसे में पेंशन की कंपनीज भी है, इंश्योरेंस की कंपनीज भी होती हैं। आपको मुझे ये बताना है कि अदर देन एसबीआई विच ऑफ द बैंक्स आर कंसिडर्ड एज डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पारादीप पोर्ट रैंक्स फर्स्ट इन कार्गो हैंडलिंग। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट, ये हमारा 6.3% फॉरकास्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने। नाउ वर्ल्ड बैंक का फॉरकास्ट है, दैट वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, दिस इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई। नाउ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सेलिब्रेट किया है अपने 150 ईयर्स, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 150 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। सो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। नाउ 2025 का फर्स्ट यूनिकॉर्न कौन सा है इंडिया का? तो दिस इज जस्पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज हमारा साइंस एंड टेक। सो लेट अस डील विद द साइंस एंड टेक वाला पार्ट। नाउ 34 सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन डिप्लॉयड बाय इंडिया अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेक्स्ट इज आयरनवुड AI चिप, ये कौन से कंपनी की चिप है? सो दिस हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय गूगल। जापान हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, ये स्टार्ट किया है हमारे जापान ने। Next is about project QPR, which is of Amazon and it is related to the internet services. Now talking about the other project which is related to the internet services is the Starlink project. Now this Starlink is of Elon Musk, ठीक है। सो ये आप याद रखना, एलॉन मस्क की एक कार कंपनी भी है टेस्ला, एंड इन अदर देन दैट SpaceX is also a thing of Elon Musk. Next is about the Sarvam AI. Now Sarvam AI is the first to build India's first indigenous AI large language model, ठीक है। Next is DRDO test scramjet for hypersonic missile. So hypersonic missile के लिए जो scramjet test है, that is conducted recently by DRDO. Now world's first 10G broadband network, ये चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। Instant gold to cash ATM has been recently achieved by China. Now 50 years हुए हैं हमारे आर्यभट्टा सैटेलाइट, that was the first satellite of India. So this is also an achievement.
Now Kalam 100, what is this? So this is a rocket engine that is developed by the Skyroot Aerospace. This is very important. ठीक है. Next is Healed initiative. Now this has been launched by India to tackle the liver diseases. Now environment की कुछ न्यूज़ है वो देख लेते हैं. Now Simlipal National Park has become the India's 107th national park. And यहाँ पे हमारे melanistic tiger मिले हैं. Next is about two new fish species, that is Labio uru and Labio chakida. These have recently been found in Western Ghat. Next is IISR Surya, is a newest variety of turmeric. Next is COP30 to UNFCCC has recently been concluded in Belém, Brazil. Next is talking about Tamil Nadu. The census of Nilgiri Tahar has recently been concluded, and the largest population of Nilgiri Tahir is in the Eravikulam National Park. Next is, let us now start with the important news about the defense and security. Now talking about the exercises, Desert Flag is a multinational exercise which has recently been concluded in UAE, in which the Indian Air Force participated. Next is INEOCOS 25. Now this is an important exercise. Now this has recently been held in Greece, and the Indian Air Force participated in this exercise. Next is the Armex exercise of 2024. Now this has recently been conducted by the Indian Army in the state of Sikkim. This is also an important exercise. This can be asked in the exam. Next is the Dustlik exercise. Now Dustlik exercise is conducted between India and Uzbekistan. It was recently held in Pune, Maharashtra. Talking about the ICME exercise, this is the India's and Tanzania first maritime exercise which was recently held in Tanzania. This is very much important क्योंकि ये first exercise है जो कि conduct हुई है इंडिया and तंजानिया के बीच. So this is very much important. Next है हमारा ऑपरेशन ब्रह्मा. ऑपरेशन ब्रह्मा was recently conducted by India to provide humanitarian aid to the earthquake struck Myanmar and Thailand. म्यांमार एंड थाईलैंड में रिसेंटली अर्थक्वेक आया था, उसी के रिगार्डिंग ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड. लेट अस नाउ सी द इम्पॉर्टेंट वंस रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स एंड इंडेक्स. नाउ अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं, सो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 रिसेंटली रिलीज़ हुई है. नाउ इट हैज़ बीन रिलीज बाय द UN डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, दैट इज़ UN देसा डिपार्टमेंट. ठीक है. Now the theme was a new policy consensus to accelerate social progress. This was the theme of this World Social Report. Next है हमारा the Asia University Rankings की बात करें तो IISc बैंगलोर को 38th रैंक है, and the top university in the world is Tsinghua University, and this is University of China. This Tsinghua University is the University of China. Next है हमारा State of Social Protection Report. ये रिसेंटली रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक ने. नेक्स्ट है हमारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट. ये इसमें जो टॉप मोस्ट स्टेट अभी कर्नाटका है, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आ सकता है. नेक्स्ट इज़ टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स. पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जिसमें कि फ्रंट रनर स्टेट्स हैं हमारे गुजरात एंड तेलंगाना. नेक्स्ट इज़ बिजिएस्ट एयरपोर्ट का टैग मिला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, विच इज़ इन New Delhi. Next is about the committees. Abhi recently BVM Subramaniam committee is in news. Why it is in news? Because this has recently been constituted to frame the national manufacturing mission. ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपके पूछ सकते हैं कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के लिए a new committee has been established. The name is BVM Subramaniam committee. Let us now see about the awards and honors. Important awards and honors हम डील करेंगे इसमें. Now talking about मधुसूदन साई को मिला है रिसेंटली फिजीज हाईएस्ट ऑनर. कौन सा है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी.
इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। एंड मधुसूदन साई कौन से वर्क से रिलेटेड है? सो ही इज़ रिलेटेड विद द ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स। एबल प्राइज ऑफ 2025 दैट इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ये रिसेंटली दिया गया है मसाकी काशीवाड़ा को। नेक्स्ट इज जेम्स एंडरसन हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द नाइटहुड बाय यूके फॉर हिज एक्सीलेंट सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट इज पायल कपाडिया। पायल कपाडिया को रिसेंटली दिया गया है ऑडिट इट्स आर्ट्स इट डिस लिटरेस अवार्ड एंड दिस इज अवार्ड ऑफ फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को मिला है फ्रेड डैरिंगटन सैंड अवार्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। एंड सुदर्शन पटनायक इज एन सैंड आर्टिस्ट, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दलाई लामा। दलाई लामा को रिसेंटली मिला है गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा 36th गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज हैज़ रिसेंटली बिन गिवन टू एशिया मतलब इन टोटल 36 गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड के 7 रेसिपिएंट है, बट एशिया रीजन के लिए मिला है बतमुख लुफ्संडाश ऑफ मंगोलिया। इम्पॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इज स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड हैज़ रिसेंटली बिन गिवन टू सिंगापुर्स चांगी एयरपोर्ट। 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो का अवार्ड मिला है समार अबू को एंड ही हेल्स फ्रॉम पैलेस्टीन। 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड मिला है एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को। नेक्स्ट इज फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम ऑफ 2025 हैज़ बीन वॉन बाय मैग्नस कार्लसन एंड दिस फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम ये अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ था फ्रांस में। नेक्स्ट है हमारा स्कॉच अवार्ड इन पुलिस सेफ्टी कैटेगरी वॉज रिसेंटली गिवन टू पुलिस यूपी पुलिस। नेक्स्ट है हुबली एयरपोर्ट्स विंस द प्लैटिनम ऑनर फॉर ग्रीन इनिशिएटिव, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे स्पोर्ट्स की कैटेगरी, सो लेट अस सी द स्पोर्ट्स के इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नाउ द सेकेंड योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप रिसेंटली कंक्लूड हुई है न्यू दिल्ली में, जिसमें इंडिया हैज़ स्कोर्ड द टॉप मोस्ट पोजीशन विथ 87 मेडल्स। ये आप इग्नोर करना, फाइनल पीडीएफ में ये मैं ओमिट कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट इज फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप होस्ट 2031 का होने वाला है यूएसए एंड 2035 का होने वाला है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2024-25 अभी रिसेंटली विन किया है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने एंड बेंगलुरु FC हैज़ लॉस्ट दिस इंडियन सुपर लीग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन ब्रीफ देखते हैं सम ऑफ द स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। नाउ फिडे वुमेन ग्रैंड प्रिक्स हैड रिसेंटली बीन वॉन बाय कोनेरू हम्पी एंड दिस इज रिलेटेड टू चेस ऑब्वियसली एंड इट वॉज रिसेंटली हेल्ड एट पुणे। IBSF बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप वॉज रिसेंटली वॉन बाय सौरभ कोठारी। नेक्स्ट है F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स वॉज वॉन बाय ऑस्कर पियास्त्री। ऑल्सो ऑस्कर पियास्त्री ने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स तो विन किया ही है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। नेक्स्ट इज राजेश उमी हैज़ वॉन द नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। ISSF वर्ल्ड कप हैज़ रिसेंटली बीन वॉन बाय चाइना। चाइना इज इन द टॉप मोस्ट पोजिशन, वेयर एज इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया का सेकेंड रैंक है। नेक्स्ट हमारा ISSF कप लीमा 2025 इंडिया का थर्ड रैंक है विथ अ टोटल ऑफ 7 मेडल्स। नेक्स्ट है हमारा बुक्स एंड ऑथर की कैटेगरी, तो देखते हैं बुक्स एंड ऑथर के बारे में। फली S नरीमन ने लिखी है बुक बियॉन्ड द कोर्ट रूम। सुखविंदर सिंह सुक्खू हु इज़ करेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ रिटन मेरे अच्छे दिन। Amarjeet Singh Dulat has written The Chief Minister and the Spy and National Archives of India ने recently रिलीज़ किया है रामानुजन The Journey of a Great Mathematician। नेक्स्ट है हमारा स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़, बिहार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर मधुबनी पेंटिंग एंड सिंगिंग बाउल एंसेंबल।
ठीक है, बिहार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द BPSC 71st एग्जामिनेशन। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द कर्नाटका हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट विलेज लेवल सर्वे ऑफ एंटीक्विटीज़। नेक्स्ट है हमारा मिज़ोरम ने रिसेंटली लॉन्च किया है अ डिज़ास्टर रिलीफ मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट इन लाइन है हमारा तेलंगाना हैज़ रिसेंटली the Telangana state will recently launch an eco town in Hyderabad with the help of a Japanese firm. Also Telangana state ने launch किया है भू भारती पोर्टल। Also Telangana has become the first state to implement the scheduled caste sub categorization। तो तेलंगाना स्टेट से रिलेटेड ये 3 करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है कृषक कल्याण मिशन। नेक्स्ट है हमारा 25th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश की बनी है BR अम्बेडकर अभयारण्य। महाराष्ट्र से रिगार्डिंग 3 यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला है महाराष्ट्र ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द IBM फॉर AI। ठीक है, ऑल्सो महाराष्ट्र में दिल्ली पब्लिक स्कूल है जिसे कि डेजिग्नेट किया है महाराष्ट्र ने एज अ फ्लेमिंगो लेक। सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ फर्स्ट थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर। हमने पहले भी देखा था, ये हमारे महाराष्ट्र के मुंबई में इट इज़ गोइंग टू बी ओपन। तो ये सारी न्यूज़ महाराष्ट्र के रिगार्डिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओडिशा अभी रिसेंटली बना है द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट इज़ हरियाणा ने अनाउंस किए हैं अपने न्यू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो कि है मिथाथल एंड तिगराना इन दी भिवानी डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों के दोनों भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा गुजरात, इंडियाज़ लार्जेस्ट क्लोरोट्यूलिन प्लांट, ये हमारे गुजरात में इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट इज़ अबाउट द अपॉइंटमेंट्स। सो देखते हैं, अमितेश कुमार सिन्हा हैज़ बिकम द CEO ऑफ द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। नेक्स्ट है BR गवाई हैज़ बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे दिनेश महेश्वरी हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ द 23rd लॉ कमीशन एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एंड फर्स्ट लॉ कमीशन की मैं बात करूँ तो इनके हेड कौन थे? इनके हेड थे मैकले। ठीक है, एंड इट वॉज अपॉइंटिंग ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाउ बेंटिक के टाइम पे सती वॉज ऑल्सो अबॉलिश्ड। कौन से ईयर में सती अबॉलिश हुई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट इज अबाउट जस्टिस अरुण पल्ली, ही हैज़ बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। Tejpal Bhatia has become the CEO of Axiom Space. Khunyudik Patama Liswatrakul has become the president of BW, Badminton World Federation. Now Anant Ambani has recently become the executive director of Reliance Industries. नेक्स्ट है हमारे न्यू चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना है तब से जो फॉर्मर जो चेयरमैन थे वो थे क्लॉस श्वाब, बट रिसेंटली क्लॉस श्वाब हैज़ रिसाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो नाउ द चेयरमैन इज लेथमाथे, पीटर ब्रैबेक लेथमाथे इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है हमारे न्यू PM ऑफ सर्बिया अभी बने हैं ड्यूरो मैकट। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ गैबोन अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं ब्राइस ओलिगियो न्यूगेमा। नाउ नेक्स्ट इज हमारा ओबिटुअरीज। नाउ शाजिक एंड करुण फिल्म मेकर हैं। कुमुदिनी लाखिया इज़ अ कथक डांसर। के कस्तूरी रंगन इज़ द फॉर्मर इसरो चेयरमैन। नेक्स्ट है हमारे जो पोप फ्रांसिस थे, ही वॉज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च जिनकी अभी डेथ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज अब्दुल्ला अहमद बडावी इज़ द PM ऑफ मलेशिया, वॉज द PM ऑफ मलेशिया, फॉर्मर PM ऑफ मलेशिया। दलीपल्ली रमैया वॉज ऑल्सो नोन एज द ट्री मैन ऑफ इंडिया।
Next is Hari Dutt Kapri is the former Indian basketball captain who recently died unfortunately. Next and the last section हमारा है about the important days for the month of April. So ये देख लेते हैं हम. Now the World Intellectual Property Day ये हमारा अप्रैल 26 को सेलिब्रेट होता है. वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 25. नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 24. ऑल्सो द पंचायत्स वेयर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द रिपोर्ट ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा फायर सेफ्टी वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम अप्रैल 21 to 25. नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन April 21st. Now with this we are done with the current affairs for the month of April. आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने आप. ठीक है. कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी. एंड अगर आपको PDF चाहिए तो पिन्ड कमेंट एक बार देख लें. यू विल गेट द PDF. सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.